Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 6th of September 2023. So Supreme Court bench finally reserve कर दिया है their verdict on abrogation of Article 370 जिसको challenge किया गया था, and definitely we are also waiting for that. And हम trace करते आ रहे थे क्या क्या developments हो रही है daily basis पे as and when we were getting the updates. So center has said abrogation necessary hai to completely integrate Jammu and Kashmir into the Union of India. Now we'll be waiting for the final verdict. And apart from this, as I just said, कि we have traced कि क्या क्या developments हुई कि कौन से subject पे basically debates हुए. So all of that we have already taken up. Then Bharat replaces India in G20 invite from the president. So government sources, they deny the plan to formalize only one name for the country during the special session of the parliament. And basically यहाँ पे नेम के ऊपर डिबेट हो रहा है कि इंडिया की जगह भारत को यूज किया गया है, जो इनवाइट्स सेंड किया गया टू द G20 members. So invitations जो president के द्वारा send किए गए to the heads of the states and the government, the chief minister of Indian states, they form an official banked on the occasion of G20 summit in New Delhi, created a flutter as word India was replaced with Bharat. So instead of जो usual president of India and invitation cards ने बोला कि president of Bharat. So phrase का use किया गया in the invite. सो अगेन ऑपोजिशन ने इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं, बोला है कि अगेन इसके पीछे रीजन क्या है फॉर द चेंज. सो गवर्नमेंट सोर्सेस का कहना ये है कि वर्ड भारत विल बी यूज्ड मोर एंड मोर इन कमिंग मंथ्स फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन. तो आने वाले टाइम में इसी चीज से स्टिक किया जाएगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली स्टेटेड है कि इंडिया दैट इज भारत, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो वेयर इज देयर एनी नीड फॉर एनी चेंज, मतलब किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया दैट इज भारत. सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, लॉजिकल. इस पे अगेन कोई ऐसा डिबेट करने की चीज नहीं है, बट अगेन दिस इज पॉलिटिकल ऑल्सो. So even Kerala maybe High Court seeks to explore carrying capacity of the hill stations. Yesterday or day before yesterday we went through कि जो northern hilly states है वहाँ पे भी center is going to look into the carrying capacity of different hill stations, क्योंकि of late we are seeing कि किस तरीके से climate change impacts जो हमें impacts देखने को मिले हैं actually in terms of cloudburst phenomena, जो frequency intensity increase हुई है. उसके अलावा जो main reason है that is again जो tourist management hai, and secondly is unplanned urbanization. So you can see Dasara elephants are receiving a ceremonial welcome at the place in Mysuru, and the group which came from the jungle camps in the Nagarhole Tiger Reserve, it will be an integral part of the 10-day Dasara celebrations. So festival season is beginning, and again cultural elements and aspects there you need to focus more upon right now.
सो अगेन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन द हिली स्टेट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हिली स्टेट्स में होगी, जिस तरीके से होगी, जो प्लान होगा, जो टेक्निक्स एंड मेथड्स होंगे, वो सेम नहीं हो सकती है कंपेयर टू द प्लेन्स। सो जो डिस्ट्रक्शन देखने को हमें मिली है बाय फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, इट हैज इवोक्ड कंसर्न एट द हाईएस्ट लेवल्स। एंड यहाँ पे जैसे कि कल हमने देखा था कि सेंटर इज गोइंग टू लुक इनटू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट hilly states. So complete and comprehensive study would be done on this. एंड इसके बाद सेंटर ने प्रपोज किया है कि 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दी पॉपुलेशन बायोलॉजी, एंड जनरली इसका मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज दे कैन बेसिकली थ्राइव सस्टेनेबली एक पर्टिकुलर डिफाइंड इकोसिस्टम के अंदर। और जब अगेन जो नंबर है इंक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड चीजें चली जाती है, एंड अल्टीमेटली फिर हमें इसी तरीके से चीजें दिखती हैं। तो जनरली पॉपुलेशन एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी, उसके वजह से इट विल गोइंग टू लीड टू अ डिक्लाइन इन द नेचुरल डिक्लाइन इन द नंबर्स एज विटनेस। जब हम देखते हैं कि इवन ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें, जब वहाँ पे हम ओवर ग्रेजिंग देखते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली नेचुरल तरीके से देन वी सी कि द नंबर्स दे डिक्लाइन। तो देन वी कैन से कि नेचर तब रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, एंड उस टाइम पे किसी के हाथ में चीजें कोई कंट्रोल या कोई स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सो हिली स्टेट्स में चैलेंज इज बैलेंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं, एंड अगेन प्रिजर्विंग द प्रिकेरियस ज्योग्राफी। सो ये तीनों एलिमेंट्स को साथ लेके चलना, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स अगर आप देखें, डिवास्टेटिंग फ्लड्स उत्तराखंड में 2013 में जो देखने को मिले थे, उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ऑफ एक्सपर्ट्स पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने के लिए। जो रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बट जो कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आई उसके बाद कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला ऑन ग्राउंड, एंड दे फेल टू रिस्ट्रिक्ट द रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स। ये भी अगेन फेलियर रहा हम बोल सकते हैं, एंड कार्विंग आउट द माउंटेन साइड्स इन वेज दैट वर डीम्ड अनसूटेबल फॉर द टोपोग्राफी। सो इन चीजों को हम नहीं रोक पाए। So all the states, they also need to undertake such studies as early as possible. This is being directed by the center. सो क्राइसिस ऑफ लैंड सब्सिडेंस जो अगेन जोशीमठ उत्तराखंड में देखने को मिली जनवरी में, उसकी वजह से भी एक नया डिबेट स्टार्ट हो गया, एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। बट इन मैटर ऑफ मंथ्स जब हमने ऑफ लेट हिमाचल प्रदेश में देखा, अनएक्सपेक्टेडली फ्लैश फ्लड्स देखे, लैंडस्लाइड्स देखी, तो चीजें थोड़ी और सीरियस हो गई। एंड रियलिटी ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हिली एरियाज में, इट कैन नॉट बी द सेम तरीके से नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से प्लेन्स में किया जाएगा। So these are few things related to infrastructure development and balancing again the environmental needs, and एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं, तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एक एस्पेक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स का जो ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, उसमें इतना कोई मैसिव चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ब्रिक्स का। तो एक ही चीज है, अब हम बात करते हैं क्या एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की वजह से जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ब्रिक्स की इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं होगी। सो we can say कि it will bring considerable amount of geostrategic value to the grouping। अब कैसे उसको समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो 35% ऑफ सऊदी ऑयल प्रोडक्शन इट गोज टू चाइना एंड इंडिया, एंड रशिया ऑलरेडी मेजर ऑयल सप्लायर है टू चाइना एंड इंडिया। इट इज नाउ लुकिंग एट ब्राजील एज अ मार्केट।
तो डिस्पाइट जो सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑन रशिया एंड ईरान पे भी आप बात कर सकते हो, तो वी आर सीइंग कि ऑयल प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड इसके अलावा मोस्ट ऑफ इट जो ट्रेड किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू चाइना। ईरान से हम बात करें तो इजिप्ट और इथोपिया, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रेजेंस इन द स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जोग्राफिकली प्रेजेंस जो है रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजिप्ट और इथोपिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या स्ट्रैटेजिक आप बोल सकते हो। एंड देन अर्जेंटीना की हम बात करें तो अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो डेफिनेटली जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, when we talk about outlook for the regional and the global affairs, तो इसमें भी जो new BRICS members है particularly which are from West Asia, naturally they fit into this political and economic framework। अगर हम 2020 की बात करें तो दोनों Saudi Arabia and UAE, they have shrugged off the US yoke and they have shaped independent foreign policy path for themselves। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, इट हैज परस्यूड de-escalation and dialogue ending the Qatar blockade 2021 में। This is another development, engaging with Turkey and opening interactions with Iran। So आप देख सकते हो कि independent decision making increase हुई है सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में। So UAE, it is also normalized ties with Iran। UAE is also moving forward in this direction। वो भी फोकस कर रहा है अपने मैरिटाइम फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए, स्पेसिफिकली गल्फ में, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में। एंड ईरान की एंट्री के साथ वी सी कि जो रोल इन एनर्जी सिक्योरिटी, it opens up opportunities for accelerated regional economic cooperation or increase हो सकती है। Besides, we see revival of the moribund north-south connectivity projects through the Jabar port, जिसमें अगेन इंडिया का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे हमें और डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है। सो ये और हम बात कर सकते हैं कि दो पॉसिबल और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं ऑफ विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ग्लोबल मल्टीपोलर ऑर्डर and there is an alignment of global interest as well as considerable economic cloud। तो जो इकोनॉमिक implications हैं वहां पे हमें काफी सारे चेंजेस हम या इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के अराउंड थ्रू एग्जांपल्स हमने उसी चीजों को समझा। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन से ऐसे लॉज हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट को गवर्न करते हैं। सो ऑफ लेट हमने देखा कि जो मिजोरम असेंबली है, दे हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके पीछे का रीजन समझेंगे। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू नागालैंड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड क्या स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फॉर नागालैंड एंड मिजोरम स्टेट। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, क्या वो एप्लीकेबल है टू नॉर्थ ईस्ट और नॉट। सो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस प्रेजेंट है, जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए, 371G फॉर मिजोरम। तो वहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट देयर इज prohibition of the application of any law जो पार्लियामेंट इम्पैक्ट करता है, and that at the same time impinges on Naga and Mizo customary law and procedure, ownership and transfer of land to its resources, ownership and transfer of land and its resources। तो जो customary law and procedure है, अगर उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी लॉज पार्लियामेंट पास कर रहा है, तो उस केस में वो लॉज नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली नागालैंड एंड मिजोरम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड ये तभी एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर इन स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करती है एंड दे आर पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑन इट। So 1986 में नागालैंड it extended application of the Forest Conservation Act to the government forest। So नागालैंड ने again जो स्टेट असेंबली थी 1986 में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट है और ऐसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एप्लीकेबल रहेगी। तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट दे मेक अप अराउंड ओनली 2.7% ऑफ द स्टेट्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया।
इसके अलावा 1997 में एक और डेवलपमेंट हुई कि होम मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उन्होंने कंफर्म किया कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इट इज कवर्ड अंडर द टर्म लैंड रिसोर्सेज एंड ये नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं है। एंड ये भी क्लियर कर दिया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है नागालैंड की, उन्होंने ऐसा कोई रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टू द स्टेट। सो ऐसे मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट ट्रेस की गई है 1998 में। फिर अगेन होम मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अपने आप का जो डिसीजन था उसको कॉन्ट्रोडिक्ट किया, बोला कि नागालैंड में एफसीए एप्लीकेबल है। तो ये चीजें चल रही हैं। जब हम मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में 1986 में इट वाज अ यूनियन टेरिटरी, तो 1986 में मिजोरम बिकेम अ स्टेट विद 53rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 371G ऐड किया गया एंड इसमें बोला गया कि जो भी सेंट्रल एक्ट्स हैं विच आर इन फोर्स बिफोर 1986 वो स्टेट में भी एप्लीकेबल होगी एंड इसमें एफसीए इज आल्सो इंक्लूडेड। और जो पावर्स हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की इन द 3 6 शेड्यूल्ड एरियाज इन मिजोरम, दे डोंट एक्सटेंड टू द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के केस में अगेन सेंट्रल लॉज ही एप्लीकेबल रहेंगे। सो मिजोरम में एफसीए कवर करता है 84.5% ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज जो नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं। और बाकी की अगर हम स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहां पे भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एप्लीकेबल है। मेघालय की बात करें, त्रिपुरा और जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं विद इन दीज स्टेट्स, वहां पे भी एप्लीकेबल है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मणिपुर, तो बाकी सब स्टेट्स में इट इज एप्लीकेबल। सो आरएफए क्या है? तो ओवर मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एग्जिस्ट करता है, वो डाइवर्ट किया जा रहा है नेशन वाइड अंडर दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सिंस 1980। तो एफसीए इट एग्जिस्ट टू डिफॉरेस्ट द फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। और आप उसके बोल सकते हो कि जो बाकी इसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब ये एक्ट था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। बस कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्ट किया जा रहा है एंड उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। सो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम बात करते हैं द टर्म फॉरेस्ट लैंड, इसको और एक्सपैंड कर दिया इन दिस एफसीए एक्ट इन दी गोदवर्मन केस टू नॉट ओनली इंक्लूड फॉरेस्ट जैसे कि हम समझते हैं इन डिक्शनरी सेंस, बट ऑल्सो ऐसा एरिया जो रिकॉर्डेड है एज द फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। सो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट थे वहां तक भी ये एक्ट और ज्यादा मतलब एक्सपैंड कर दिया गया, स्कोप एक्सपैंड कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो मोर देन हाफ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंडर फॉल करता है एंड 53% अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो इंडिविजुअल्स या क्लैंस या विलेज काउंसिल्स उनको कंट्रोल करते हैं बाय देयर कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया भी इस एक्ट के अंडर कवर किया जाएगा। सो जो आरएफए की रेंजेस है इट इज फ्रॉम 34%। असम में डिफरेंट स्टेट्स का यहाँ पे शेयर दिया गया है एंड एपेक्स कोर्ट का जो है 1996 का ऑर्डर था गोदवर्मन केस में, इसकी वजह से हमने देखा कि अनक्लास फॉरेस्ट भी इस एक्ट के अंदर आ गए थे। सो ये आरएफए एक्ट है क्या? सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बाकी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफआरए 2006 है। फॉरेस्ट लैंड जो है इट इंक्लूड्स अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर फॉल करती है। तो 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें रीडेफिनेशन, इसको रीडिफाइन किया गया एंड जो बेनिफिट्स थे मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ड्यू टू द साइजेबल अनक्लास्ड फॉरेस्ट, द दिस एफआरए एक्ट इट आल्सो इंक्लूडेड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द लिस्ट ऑफ द राइट्स। तो राइट्स बेसिकली जो रिकॉग्नाइज्ड है अंडर एनी स्टेट लॉ और या ऐसा कोई लॉ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल जिन्होंने एक्सेप्ट किया है as the rights of the tribals under any traditional or customary law of any specific concerned tribes of that particular state.
बट अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, तो किसी भी ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है FRA एक्ट को, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा। सो रीजन ये है कि दे फील के जो FRA एक्ट है इट इज इररेलेवेंट, क्योंकि जो कम्युनिटीज हैं, क्लैंस या चीफ्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो बेसिकली ओन करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड, एंड उनकी जो राइट्स हैं जो वो इंजॉय करते हैं, एंड लैक ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो आर टोटली फॉरेस्ट डिपेंडेंट। सो वाइल मिजोरम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मिजोरम में, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 2009 में अंडर आर्टिकल 371G की वो FRA को एक्सटेंड कर देंगे, एंड जो उसके रूल्स हैं दे वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2009 इन द स्टेट। बट उसके बाद लेटर ऑन दे डिड अ यू टर्न, डिक्लेयरिंग जो FRA एक्ट है वो रेलेवेंट नहीं है टू द स्टेट, बिकॉज कोई क्लेम नहीं करता फॉर द राइट्स दे वो फोर्थ करना। सो क्वेश्चन आता है कि अब फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज निकल के है कि इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि हर स्टेट में सिचुएशन अलग है, उनका स्टैंड अलग है। कहीं पे इट इज इम्प्लीमेंटेड, कहीं पे दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें अल्टीमेटली फॉरेस्ट को कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है। सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया कि FRA एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। 2009 की हम बात कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर, हु आयरॉनिकली आल्सो हेडेड द डिस्ट्रिक्ट कमिटी आल्सो, जो इशू करता है FRA टाइटल्स को। सो 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ने एलिमिनेट कर दिया जो कंप्लायंस थी विद द FRA बिफोर फाइनल अप्रूवल ऑल टुगेदर। सो इंस्टेड उसने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो ऑर्डर्स इशू करेंगी फॉर डाइवर्जन या असाइनमेंट ऑफ द लीज या डी रिजर्वेशन एज द केस मे बी, एंड स्टेट्स वो भी फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लीगल मेजर्स भी लेके आ सकते हैं टू इंश्योर मैंडेटरी फुलफिलमेंट ऑफ दिस FRA बिफोर रिकमेंडिंग एनी फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रपोजल की। और साथ ही साथ ग्राम सभा की कंसेंट लेना भी इम्पोर्टेंट है बिफोर हैंडिंग ओवर द फॉरेस्ट लैंड। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर्स है या ऑब्लिगेशन है, दैट इज more on the state governments when it comes to protection of the forest. So Indo-Pacific and China, ये हमारे मेन एजेंडा पे है। प्राइम मिनिस्टर ही लीव्स फॉर जकार्ता। So ASEAN India Summit is going to be there in Jakarta, and East Asia Summit, which will be hosted by Indonesian President. So mean again, जो एजेंडा रहने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन के अराउंड जो कंसर्न्स हैं, एंड ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना। So during the ASEAN India Summit, जो first ever summit होने वाला है since the two sides upgraded their relationship to comprehensive strategic partnership in 2022. So this is going to be the first most summit after this. So strategic cooperation पे military exercises as well as connectivity, including physical, digital, people-to-people ties. So इनके ऊपर we can expect some debate and more developments. So China again publication recently map एक publish किया था जिसमें it was claiming territories on the Indian side. So इस चीज को भी लिया जाएगा। सो जी जिनपिंग स्किपिंग द G20 समिट, क्या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से डेलिबरेट सिग्नल है जो प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया को और वेस्टर्न वर्ल्ड को। सो जो डिसीजन था, बेसिकली चाइना बिलीव्स इट शुड बी लिमिटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज ओनली, एंड इसको इतना वाइडर कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। So Aditya L1, it enters a new orbit, and
seeing actions by ISTRAC. So second Earth-bound maneuver of Aditya L1 to study the sun that has been performed, and so far it is moving forward in a successful manner. So technical details आपको पता होना चाहिए. We have talked a lot about this कि again हमारा objective क्या है behind this mission. So we are seeing कि इजराइल में सिचुएशन कैसी वॉलेटाइल एंड अनस्टेबल है. तो यूएन ने वार्निंग इशू करी है इजराइल को कि इफ दे विल एक्सपेल द एरिट्रियंस एन मासे तो ये एक अनलॉफुल एक्ट है. सो यूएन ने अर्ज किया है इजराइल को टू रिफ्रेन फ्रॉम सच डिपोर्टेशंस ऑफ एरिट्रियंस. बेसिकली क्लैशेस देखे गए इन्वॉल्विंग द asylum seekers and warning it would contravene international law, and उसकी वजह से again we can expect dire human consequences as well. तो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने बोला है कि दे आर डीपली कंसर्न जो भी क्लैशेस देखे गए सैटरडे को इजराइल में जब डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था अगेंस्ट एरिट्रियन गवर्नमेंट इवेंट, एंड वी सॉ वायलेंस इमर्जिंग. बिजनेस पेज पे अगस्त में जो सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स था उसमें हमें मोमेंटम सस्टेनेबल मैनर में मोमेंटम इज सस्टेनिंग बट थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. सो सर्विसेज सेक्टर अगेन कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ या इवन एक्सपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो सर्विसेज सेक्टर आउटपुट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है जो मेजर की जाती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा. वो थोड़ा बहुत हमें स्लो डाउन देखने को मिला है. So to cope with the additional workflows, firms में hiring increase हो रही है. They are roping in blend of permanent and temporary staff में increase हो रहा है. Overall जो positive sentiment है among the services businesses that is rose to highest level so far in 2023, and firms they expect continued growth in the coming years. So finance minister she flags the threats to the financial system. तो हमारे financial system को क्या threats हो सकते हैं? Cryptocurrency and tax havens दो major threats हैं, concerns हैं regarding जो हमारी again financial system की stability को hinder कर सकते हैं. So again collaborative efforts they will bear fruits. And globally हम बात कर सकते हैं not just in the context of India, globally ये दोनों threats valid हैं. So investing heavily to protect the user data and financial transactions, that is another important aspect क्योंकि we are seeing कि financial frauds भी almost 200% increase हो गए हैं. So financial inclusion में again fintechs they are helping us and influencing India's financial ecosystem. So drug mafias की बात करो, tax havens, round tripping, tax evasion, ये कुछ serious threats हैं to the global financial system. तो इंडिया में जो क्रेडिट मार्केट है दैट इज ग्रोइंग ऑन कोर्स टू 350 बिलियन डॉलर्स बाय ईयर एंड. सो डिजिटल लेंडिंग जो सेगमेंट है दैट इज एट 270 बिलियन डॉलर्स. सो थ्री फोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में, एंड फिनटेक मार्केट दैट इज ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग एक्सपोनेंशियली. अगेन अभी हमने जस्ट कंसर्न्स भी देखे थे. So because of increasing prices of the jet fuel again क्या हम impact इस चीज के एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली एयर टिकट्स एक्सपेंसिव हो सकती हैं. स्पेसिफिकली अब हम बात करें जब फेस्टिवल सीजन की तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. एंड
So we are seeing कि combination of weakening Indian rupee against the US dollar and unpredictable international crude oil market, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। एंड इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया में और ज्यादा देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि स्टेट्स भी वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज करती है ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो दो मेन रीजंस हैं। एयरलाइंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है अब इस चीज का, तो इट कुड बी अ सेटबैक फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री, जहाँ पे भी सी कि इट एलोकेट्स 40 to 50% जो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव है वो जेट फ्यूल के ऊपर ही जाता है। सो इस इंक्रीज की वजह से चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती है व्हेन वी आर फर्स्टली स्टिल रिकवरिंग आउट द फाइनेंशियल हार्डशिप्स जो कोविड-19 टाइम में हमें देखने को मिली एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी जो लगाए गए। तो स्टिल रिकवरिंग आउट पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, यस दैट इज प्रॉमिसिंग। एंड डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में हमने रिमार्केबल सर्ज देखा, इंक्रीज देखा अप टू 25%। सो जो मोमेंटम है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है ये चेंज। इम्प्लीकेशंस फॉर कार्गो वॉल्यूम्स पे भी अगेन ए नेगेटिव अनफेवरेबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगेन एयरफेयर्स और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्सेस हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो लेवी किए जाते हैं, जैसे स्टेट चार्जेस, दी वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें रिडक्शन किया जा सकता है। उसके अलावा वी माइट एक्सपेक्ट कि 1 से 4% के बीच में टैक्स रिडक्शन पॉसिबल है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को इस चीज पे अगेन इट इज ट्राइंग टू कन्विंस देम। एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल अभी जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया जाता है, तो वंस इट कम्स अंडर इट तो वहां पे भी अगेन बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ द टैक्स रेट जो लगाया जाता है ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कमिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे 1 hour सेटलमेंट मार्च में। सो द पीपल हु इन्वेस्ट एंड डू ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 1 hour सेटलमेंट, चीजें बहुत ज्यादा क्विक एंड फास्ट हो जाएंगी। सो सेबी प्लान्स की इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट इन अ ईयर हो सकता है, तो जो टाइम था अगेन उसको रिड्यूस कर दिया गया। अभी T+1 सेटलमेंट सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है एंड नेक्स्ट ईयर यू कैन सी कि 1 hour सेटलमेंट तक हम पहुंच जाएंगे। सो एक और मूव जो प्लान किया गया था बाय द सेबी मार्केट रेगुलेटर इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट लाइक मॉडल फॉर द सेकेंडरी मार्केट। सो ऑब्जेक्टिव अगेन इसके पीछे भी यही था, जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसको और थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। पहले जो सिस्टम फॉलो किया जाता था सेटलमेंट सिस्टम T+2, टी मीन्स ट्रेडिंग डे से 2 दिन बाद तक सेटलमेंट कंप्लीट होती थी। अब वी हैव रिड्यूस दैट टू T+1, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू 1 hour सेटलमेंट, मतलब 1 घंटे में ही सारा अमाउंट सेटल हो जाएगा। एंड अगेन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इश्यूज लाइक साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रेगुलेशन एंड एम्फसाइज द स्कोप ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनेबल रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन इंक्रीज हो रहे हैं, दे हैव क्रॉस $90 मार्क। सो पावर डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, इट इज अबाउट 40 to 50 GW मोर देन कॉरेस्पॉन्डिंग डे लास्ट ईयर। तो इतने अमाउंट से हमारी पावर डिमांड इंक्रीज हुई है एंड वी हैव बीन ह्यूज एनर्जी इंपोर्टर्स आल्सो। सो इफ वी डोंट डू समथिंग अबाउट दिस आवर इंपोर्ट्स बिल विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगेन इंडिजिनसली प्रोड्यूस करना जितनी भी हमारी पावर डिमांड है, सो वी नीड टू बी एक्चुअली fast and we need to move beyond, we need to be step forward जब हम बात करते हैं मीटिंग द
डोमेस्टिक पावर डिमांड, क्योंकि तभी हम इंश्योर कर सकेंगे कि आने वाले टाइम में नॉट जस्ट हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज ना हो बट वो रादर डिक्रीज भी हो। सो ई रूपी सीबीडीसी के बारे में बात कर चुके हैं। आरबीआई प्लान्स ई रूपी यूज इन कॉल मनी मार्केट एज वेल। सो गोइंग डिजिटल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी पायलट फेज में, वी आर टेस्टिंग इट अक्रॉस द होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट्स एंड 1 million ट्रांजैक्शंस अ डे ये आरबीआई ने टारगेट सेट किया है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 25,000 एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। So again, this is going to be easier to experiment with technology in the wholesale CBDC due to जो limited number of users exist करते हैं, kinds of transactions किए जाते हैं, तो इसको भी इसलिए इसी स्फेयर में टेस्ट किया जा रहा है। Then apart from this, we're also making efforts to internationalize rupee या de-dollarization की आप बात कर सकते हो, और रुपे कार्ड्स, यूपीआई एंड जो अदर पेमेंट सिस्टम्स हैं इंडिया के, उसको भी इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। सो यूपीआई इज गोइंग ग्लोबल। सो एसएनपी का कहना ये है कि आने वाले टाइम में अगेन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन्फ्लेशन थोड़ी हाई ही रहेगी। सो इन्फ्लेशन इंडिया इज लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन नियर टर्म बिकॉज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्रीज ना हो, बट अगेन फेस्टिवल सीजन ऑल्सो नियर, सो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन माइट रिमेन अप। एंड जो फूड इन्फ्लेशन की वजह से सीरियल इन्फ्लेशन अभी चल रहा है, दैट इज द मेन रीजन। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो ड्राइव अप इन्फ्लेशन फर्दर। So at the same time, आरबीआई गवर्नर का कहना ये कि दे आर कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4% जो हमारा टारगेट लेवल है। सो ही सेइंग कि इट इज इम्पोर्टेंट कि हम विजिलेंट रहे एंड जो नेसेसरी स्टेप्स हैं दे आर टेकन इन कैलिब्रेटेड एंड टाइमली मैनर, सो दैट जो इवन इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सेंस कि अगर आपकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो उसकी वजह से भी चीजें थोड़ी और खराब हो सकती हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में जो रिफॉर्म्स की बात करें, दिस इज आल्सो वन द इम्पोर्टेंट एजेंडास एट द अपकमिंग G20 समिट। सो पहली तो क्वेश्चन ये आता है कि उनको हमें रिफॉर्म करना क्यों है। सो फर्स्टली 600 मिलियन पीपल राइट नाउ, हम यहाँ ग्लोबल लेवल की बात करें तो दे आर स्टिल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो लैक ऑफ फंड्स, उसकी वजह से एसडीजी गोल्स को मीट करना एक चैलेंज है। सो अगेन यहाँ पे भी हमें कुछ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। जो राइजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज हैं, इवन अनइवन कैपिटल फ्लोज देखे जा रहे हैं, तो इसीलिए इन डायमेंशंस इन एरियाज में एमडीबी रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। सो अगेन एसडीजी एजेंडा की अगर हम बात करें तो $3 ट्रिलियन रिक्वायर्ड है एवरी ईयर एडिशनल स्पेंडिंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज दैट इज नीडेड। तो उसको कैसे हम इंश्योर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे सारा एसडीजी के अराउंड बात की जा रही है। Coming to Indian Express newspapers, so let's see advertisement क्या बोल रही है। Great relief for lasting smiles, farmers के context में profitable farming and again comfortable farmers. So this is the context of state of मध्य प्रदेश, but अगर आप इसको state के context में ना देखो, generally अगर आप सोचो सिर्फ farmers और agriculture sector के बारे में, तो क्या गवर्नमेंट ने steps लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इज देयर, आप एमएसपी के बारे में बात कर सकते हो। इसके अलावा जो
इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स दिए जा रहे हैं, दैट इज देयर। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इज रनिंग, एंड ये भी बात की जा रही है कि जो उसमें फाइनेंशियल अमाउंट दिया जा रहा है वो 3000 से और इंक्रीज किया जा सकता है। लोन वेवर स्कीम्स हैं। देन अब इसके अलावा यहाँ पे अगेन इरिगेशन से रिलेटेड चीजें बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एंड क्रॉप रिलीफ फॉर द क्रॉप डैमेज। बेसिकली ये चीजें इंश्योरेंस स्कीम जैसा फंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं। सो वाटरिंग फार्म इकोनॉमी, यहाँ पे भी सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। 7 सूत्रास फॉर फार्मर्स वेलफेयर क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, फार्मर्स को क्राइसिस के टाइम में हेल्प करना। सेकंड, टाइमली इंश्योरिंग फार्म इनपुट्स, reducing the cost of farming, helping increase food grain production, facilitating farmers they get the best remunerative prices या MSP की बात कर रहे हैं, empowering farmers through FPOs और promoting crop diversity, export and organic farming. तो यहाँ clearly 7 points mentioned है which you can again write in your answers, and इसको आप further substantiate कर सकते हो जो government steps ले रही है जो real ground में हमें changes देखने को मिल रहे हैं। तो डिजिटल करेंसीज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्टली इट इज इम्पोर्टेंट कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसको हम क्लोजली एग्जामिन करें, एंड आगे का फिर व्हाट इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली वी नीड टू डिसाइड अपॉन दैट। सो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स सभी, मतलब हम ग्लोबल लेवल की बात करें, देर एग्जामिनिंग कि क्या पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं ऑफ इशूइंग डिजिटल करेंसीज। सो अकॉर्डिंग टू अटलांटिक काउंसिल 19 ऑफ द जो G20 कंट्रीज हैं वो एडवांस स्टेजेस में ऑफ डेवलपिंग CBDCs, एंड 21 कंट्रीज ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुकी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो टेकिंग टेंटेटिव स्टेप्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पायलट प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी फंक्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा होलसेल मार्केट्स में वी आर टेस्टिंग इट। सो वी आर स्लोली एंड स्टेडली हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं विद मोर बैंक सिटीज एंड पीपल एंड यूज केसेस। सो अभी अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची इन एरियाज में पायलट फेजेस में इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑफ CBDCs या डिजिटल रुपी या ई रुपी। सो फर्स्टली तो जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द फिजिकल कैश मैनेजमेंट वो कम हो सकती है। देन इंटर बैंक जो मार्केट है उसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है विद द यूज ऑफ CBDC। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अगेन वो चीपर, फास्टर एंड और ज्यादा सिक्योर तरीके से की जा सकती हैं। इंस्टेंट सेटलमेंट्स हो सकती हैं उनके थ्रू। सो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंसेस है, तो अगेन यहाँ पे भी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो फ्रिक्शंस एसोसिएटेड है विद दीज ट्रांजैक्शंस वो रिड्यूस की जा सकती है, उसकी वजह से हम वाइडर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देख सकते हैं। सो अगेन डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा फिर कलेक्टिवली दैट वुड बी ऑन द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम्स स्टेबिलिटी।
So this we have seen कि Prime Minister leaves for the ASEAN and East Asia Summit. तो आपको पता होना चाहिए member countries firstly तो, and again map is very important around this region. So straits and different countries की उनकी location, different islands जो located है वो सब important हो जाता है. तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अरेबियन सी में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट क्यों होते जा रहे हैं. दिस इज वन द पोटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ मेंस. So here we have one of the sessions which was held with the director of the Center of Climate Change Research at the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. So he was talking about कि क्या factors are behind the extreme weather events and the predictive models का क्या कहना है on this. So herein he said कि पहले की एक स्टडी है जो बोल रही कि जो एक्सट्रीम इवेंट का जो ट्रेंड है वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है अक्रॉस इंडिया. कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ इंक्रीज डिफरेंट रहेगा, सम अदर पार्ट्स में जो ट्रेंड है वो डिफरेंट रहेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, द MTC इट हैज अ लिंक टू द इंडियन ओशन डायपोल. मतलब इंडियन ओशन डायपोल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लाइमेट पैटर्न है जो इफेक्ट करता है वाटर टेम्परेचर को. सो इवन जो रीजनल हैवी प्रेसिपिटेशन है उसका भी लिंक है विद द सर्कुलर पैटर्न, द मोड्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड द वे वाटर वेपर इज चैनल्ड टू दैट रीजन फ्रॉम द सोर्सेज एंड सो ऑन. सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे heavy precipitation projected here to increase in a global sense also. So weather systems, they also play a major role. Apart from this, जब हम मानसून सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं. एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसे सारे इवेंट्स में कि बहुत सारी रेनफॉल हो सकती है. सो दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट द ईयर. तो एक ये प्रॉब्लम भी है. एंड साथ ही साथ जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनके साथ अनसर्टनिटी का जो एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो गेटिंग एसोसिएटेड विद इट. सो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं उन सब के ऊपर ये स्पोकन अबाउट ऑन द काइंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसमें ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी में जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है. एंड अर्लियर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ जो साइक्लोन्स होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में देखे गए हैं. सो अगेन यहाँ पे जब हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस की बात करते हैं तो वी नीड टू आल्सो वर्क अपॉन दिस फ्रंट एज वेल. सो सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे कोस्टल एरियाज में. दिस इज मोस्टली बिकॉज increase in the mean sea levels in the region itself that is increasing, and melting of glaciers Himalayan region में they are also impacting precipitation also. देन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इतना ज्यादा वार्म नहीं हो रहा है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज. स्पेसिफिकली अगर हम वेस्ट की बात करें तो जनरली जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं दे आर मोर प्रोनाउंस्ड पोलर रीजन्स में. तो वन पॉसिबल रीजन कुड बी जो आइस एल्बिडो फीडबैक इफेक्ट होता है. इट बेसिकली मीन्स की हायर अब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय द मेल्टिंग आइस एक्सपोजिंग ग्रेटर लैंड सर्फेस. सो इसकी वजह से जो वार्मिंग है और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है स्पेसिफिकली हाई लैटिट्यूड रीजन्स में. So this is affected by circulation changes. But tropical areas की बात करें तो warming is less because again high altitudes में warming ज़्यादा देखी जा रही है. And one reason is formation of clouds also, जिसकी वजह से जो radiation reaching the surface है वो reduce रहती है. So water vapor feedback that increases the warming. So ये कुछ इफेक्ट्स हैं जब हम बात करते हैं एरोसोल्स के. ये cooled the large areas in the northern hemisphere. So tropics में जो water vapor feedback है उसकी वजह से warming देखी जाती है. And जब precipitation होती है तो soil is going to get wet. So उसकी वजह से we see more evapotranspiration and latent heat fluxes. तो सारी साइंस की टर्म्स हैं, ज्योग्राफी की टर्म्स हैं रिलेटेड विद मॉनसून.
सो अगेन इनका आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया दैट इज भारत, इस पे अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज के ऊपर क्या गया डिबेट था व्हेन वी एक्चुअली डिसाइडेड इट। सो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स थी, एंशियंट रेफरेंसेस किए गए, सपोज विष्णु पुराण एंड ब्रह्म पुराण को रेफर किया गया, वो भारत मेंशन करते हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो 7th सेंचुरी के चाइनीज ट्रैवल थे यून सैंग, उन्होंने भी इंडिया को एज अ भारत रेफर किया। कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया जो आइडिया है, या इवन हम भारत भी बोलते हैं, तो हमारी सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी है। मतलब India is more ancient than Bharat itself. मतलब it's a deep meaning. So I want that it should be on record that this is incorrect. तो ये जो अगेन यहाँ पे डिस्कशंस हो रही थी उसके अराउंड ही पे बात हो रही है। एंड देन अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, उनका क्या स्टैंड था, तो ही रिमाइंडेड द हाउस सेवरल टाइम्स की जो सिविलाइजेशनल डिबेट है वो अननेसेसरी है, बिकॉज द नेम भारत इट वाज नॉट अपोज्ड बाय द मेंबर्स। सो वी आर merely नाउ डिस्कसिंग कि वर्ड भारत शुड कम फ्रॉम इंडिया और नॉट। So the word Bharat, it reminds us of the past glory of India, and there's a lot of work to be done. So he said कि again, तो इस तरीके से कुछ डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अराउंड दिस टर्म। तो ब्लैक सी ग्रेन डील क्यों सिग्निफिकेंट है, ये है क्या, ये हमें ऑलरेडी पता है, बट हमारे लिए यहाँ पे अब इसको जोग्राफिकली समझना इम्पोर्टेंट है, मैप वर्क इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टर्की, ब्लैक सी, क्रिमिया, यहाँ पे आपको स्ट्रेट्स के नेम पता होना इम्पोर्टेंट है। सी ऑफ अजोव इज लोकेटेड, एंड कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है ब्लैक सी को, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं द नेम भारत के बारे में, बट आज के टाइम में अगेन वी आर एसोसिएटिंग इट मोर विद रिलीजन। तो किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उस वर्ड को कनेक्ट करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ सोनली द नेम भारत। सो अब हम अगेन ऋग्वेदा से भी अगर हम बात करें, ऋग्वेदा क्या कहता है ऑन दी टर्म महाभारत, सो ये सब यहाँ मेंशन्ड है। तो भारत अपीयर्स इन ऋग्वेदा ऑल्सो। So उस टाइम पे again भारत was a name of a tribe, Sudas. So again they defeated an enemy coalition, the Battle of Ten Kings. So Rigveda refers to Bharata's people and the sons of Bharata. So idea of Bharat Varsh as a geographical entity, this we can trace to Puranic literature या फिर Mahabharat, which is thought to have been compiled between 3rd and 4th century BC. So विष्णु पुराण की बात करें, earliest portions अगेन यहाँ पे भी हमने देखा कि